अमेदा यानी कि फैट लॉस। तो अमेदा के लिए ओके, हरियाणा, जबलपुर, पुणे, राजस्थान, दिल्ली, तो कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर से लोग हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू लूज दैट एक्स्ट्रा पाउंड. So, if I have your permission, I would like to share the screen to tell you the secret of this weight loss. आप क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने internal system पे काम करें and slowly and steadily you lose your extra pounds. Of course, it's not going to be overnight. It's not like popping a pill. It is going to take its own time, but it will be rewarding in the long run. So, isn't that what we want? That it should be rewarding in the long run and no short term benefits. कितने लोगों को long term benefits चाहिए, long term look good factors चाहिए. Rajan sir gives me a great thumbs up. So, if I have your permission, I would like to share the screen. Give me a quick permission so that I can share the screen. Thank you so much, Rajan sir, once more. And give me 2 minutes as I share the screen. So, Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. The correct approach to weight management and related issues. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेट होता है बॉडी में जब एक्स्ट्रा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ranging from diabetes to BP to allergies to insomnia, and the list goes on and on. और हमें पता भी नहीं चलता है कि these problems could be related to the extra kilos. So let's move further. Freedom from restrictive diet plans. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra. Excuse me. And I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than weight management क्योंकि आप holistically अगर देखें तो weight management is a very, very small part of it. People who are rejuvenating from an operation, those people also benefit from this program. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and can be corrected and balanced back to its natural state. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary solutions and are looking for something natural and permanent. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. So, weight management with Kumbhak the right way, freedom from restrictive diet plans. What you will be learning in today's webinar: what is fat, why the body creates fat, a new way to look at weight management, what is Kumbhak, why a need for Kumbhak, how Kumbhak works on the body. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. उन्हें क्या बताना है हमें weight के बारे में and how to holistically come out of your weight issues. Thank you so much for listening to me patiently.
Now I would let you know how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप देखेंगे recorded video of Swami Raj Vibhu ji. After that, we will definitely be sharing the program details, and then we will be having somebody live who has been a part of Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. So he or she will be sharing their journey of Ameda. And then I will be taking up the questions, whatever is possible within the limited time. तो आप लोग सब लिख डालिए आपके क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर रहे हैं ड्यू टू दैट extra weight along with your name and contact number. Thank you so much. Over to Anil ji to share the video. Namaste Swami ji. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. तो आपका वेट कौन बढ़ाता है और कौन इसको बैलेंस रखता है और कौन कम कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, who increases your weight, who can balance it and who can reduce it? कौन करता है बताइए? कोई डॉक्टर आके कर रहा है, पड़ोसी कर रहे हैं? नहीं. गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है? नहीं. कौन कर रहा है वेट इंक्रीज और डिक्रीज या बैलेंस में रख रहा है? किसका स्ट्रेंथ है ये? जरा सोचिए, किसका स्ट्रेंथ है ये? ये आपके शरीर का ही स्ट्रेंथ है ना, या किसी और का है? वेट को मैनेज करने की शक्ति किसकी है? आपके शरीर की है. On whose strength your body increases, decreases or manages weight? Its own strength of weight management. अगर वो कम हो गई शक्ति, if that decreases, your weight will go haywire. इधर उधर जाएगा आपका वेट. मगर आप क्या करेंगे? What will you do? You will reduce your food, restrict your diet, or eat some fat cutter. मगर आपके वेट को मैनेज करने की शक्ति जो आपके शरीर के पास में है, इसके ऊपर आप कब काम करते हैं और कैसे? जिसके कारण आपका वेट इंक्रीज होता है, द रीजन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच योर वेट इंक्रीजेस. डू यू वर्क अपॉन दैट? तो रेस्ट्रिक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट आपको नुकसान करेगा. कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट आपको एम्पावर करेगा. व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट? अमेदा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट. इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको टॉर्चर नहीं करना अपने शरीर को. जो शरीर के अंदर वीकनेसेस हैं, जो रिस्क है, उसको कम कर देना है. वीकनेसेस को पावर बना देना है, इंप्रूव. वीकनेस को हटाना है. तो आपका शरीर वेट मैनेज अपने आप कर लेगा और दोबारा नहीं बढ़ाएगा. सो इसी के बारे में एग्जांपल लेके एंड हाउ वी कैन डू इट, ये हम आगे देखेंगे. बट पे अ लिटिल मोर अटेंशन, थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड इनटू सम अदर काइंड ऑफ अ नैरेटिव. आपको ना कुछ कुछ बता रहे हैं. अच्छा, यहां तक भी बोल रहे हैं कि वेट के कारण ही डायबिटीज होती है और वेट के कारण ही ब्लड प्रेशर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है. ये सब बता रहे हैं ना आपको, कहीं ना कहीं आपने सुना है. तो मुझे एक डायबिटिक बता दीजिए जो 100 साल के अंदर हमने ठीक कर दिया बाय सम काइंड ऑफ मेडिकेशन और दिस नैरेटिव.
ब्लड प्रेशर एक इंसान बता दीजिए जिसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया पिछले 100 साल के अंदर बाय टेकिंग सम मेडिसिन और रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर। किसी का डायबिटीज ठीक हुआ पिछले 100 साल में? एक भी तो प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ तो दिखाओ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक किसी का हुआ हो, थायराइड थायराइड ठीक हुआ हो किसी का। जस्ट गो अ लिटिल बैक, योर ग्रैंड मदर एंड 1 जनरेशन बिफोर, आपके ग्रैंड मदर की मदर पे चले जाओ, ग्रैंड फादर के फादर पे चले जाओ। किसको थायराइड था? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किसको था? इनफर्टिलिटी किसको था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको था? मगर आपके केस में क्या बोलते हैं? जेनेटिक है जी। तो आप तो मार्स से आए हो या दूसरे ग्रह से आए हो? एलियन हो क्या? तो ये जेनेटिक कहां से है? तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इंडियंस हैं, भारतीय हो ना, इंडियन ही हो ना। तो आप लोग समझदार लोग हो। अब आपको मानना पड़ेगा कि आप ज्यादा समझदार हो, नहीं तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे इसको। सो अलार्म रेज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, मगर इसको कम करने का कोई तरीका हमें नहीं मिलता। ये क्यों हो रहा है ये भी हमें नहीं मालूम है। डायबिटीज क्यों हो रही है, पीसीओडी क्यों हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों, हमें नहीं मालूम। आप जाके गूगल कर लो, सारी एलोपैथी की किताबें पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली आखिर में क्या आता है? वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। अगर आप जानते ही नहीं है तो ठीक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली देयर इज नो प्रूफ, एक बंदे की भी प्रॉब्लम नहीं जा रही, एंड एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अलार्मिंगली बढ़ रहा है। मेंटल इश्यूज एपिडेमिक बन चुका है। तो हम तो ठीक कर ही नहीं रहे कुछ भी। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्यों होता है। आपको लगता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े साइंटिस्ट, नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े कुछ भी नहीं होते। इंसान तो 6 फीट 60 फीट ज्यादा से ज्यादा इतने का होगा, और कितना होगा? 50 फीट का थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर खड़ा करके समझदार नहीं होते। कपड़े पहन के आप समझदार नहीं हो बन जाते, नहीं तो सभी कपड़े पहन के समझदार बन जाते, किसी को अपने ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। तो ये जो ना फॉल्स सिविलाइजेशन का नैरेटिव आप हटाइए पहले, कम बैक टू योर रूट्स, अपनी जमीन पे वापस आ जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आप सभी समझदार हैं और आप सभी समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात, ये किन किन लोगों के लिए प्रोग्राम है? किन किन लोगों के लिए है? जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, बिना डाइट के वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और उनका वेट दोबारा ना बढ़े, ऐसी इच्छा है जिनकी। और कौन लोग करना चाहते हैं? हु वांट टू इंप्रूव देयर मेटाबॉलिज्म, अपने शरीर में भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की ज्यादा बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम के जो भी है, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इन सब में सिम्टम से राहत चाहते हैं। Who want to improve their life in terms of functionality, ज्यादा लाइफ में काम कर सकना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, उनके डिप्रेशन का जाना, मेंटल इश्यूज जो भी चाहते हैं कि उनके मेंटल इश्यूज चले जाएं, इंक्लूडिंग केसेस लाइक पार्किंसन। फिर जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग भी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बाहर से खाके आपके शरीर की इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ठीक है ना, इम्यूनिटी इन द लास्ट 100 years हैव गॉन डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अपनी इम्यूनिटी, इम्यून स्ट्रेंथ, डिजीज का रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी इन्फेक्शंस का भी अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे और तरीके के इन्फेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर
उससे जल्दी रिकवर हो, है ना। जो अपनी रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आगे चल के उनको प्रॉब्लम आए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, या प्रॉब्लम आए ही नहीं, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव इम्यूनिटी की तरफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। अच्छा, किसी का कोई सर्जरी हुआ, कोई सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ा, या फिजिकल फिजिकल डिफॉर्मिटी और फिजिकल वीकनेस कहीं पे है, तो रिहैबिलिटेशन जो चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है ना। कभी सर्जरी हुआ, स्ट्रक्चर में इश्यू आया, एक्सीडेंट हुआ, तो रिहैबिलिटेशन, वापस रिकवर करना अपनी बॉडी को सेम स्ट्रेंथ पे जो पहले थी, उनके लिए प्रोग्राम है। एडिक्शन में जो पड़ गए हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन, चाहे वो फूड एडिक्शन हो, चाहे एडिक्शन किसी भी ड्रग का हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, एडिक्शन से जो ग्रसित हैं किसी भी तरीके के, वो एडिक्शन से वापस निकलने का स्ट्रेंथ, जिनको रीजनरेट करना अपने अंदर, अपने बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी के सहारे उनको खुश ना नहीं चाहिए, अपनी बॉडी खुद ही हेल्दी और खुश रह सके, तो एडिक्शन से किसी भी तरीके के निकलना हो तो उनके लिए प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं ये प्रोग्राम। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी मैंने बता दिया, उसमें बहुत सारे और वर्टिकल्स आ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। उसमें फर्टिलिटी को लेके, जैसे कि किसी को अगर अपने उनके बॉडी में फैट ज्यादा है, फैट कम करना है, उनका फर्टिलिटी, हार्मोनल इशू आ रहा है, हार्मोनल अगर इशू आ रहा है आपके शरीर के अंदर, तो वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडर कैटेगरी मैंने बता दिया, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई सेड, दैट वेट इज मैनेज्ड बाय योर बॉडी, नोबडी एल्स। वेट आपका बॉडी मैनेज करता है। कैसे करता है अभी इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये बात आप 100% अपने गांठ बांध लीजिए, अपने साथ पकड़ के रखिए इसको। तो अगर आप बाहर काम करेंगे तो आपका बॉडी वेट कम कर देगा जबरदस्ती में, मगर वापस बढ़ा देगा। लेकिन आप अगर अपने बॉडी का वेट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये हमेशा मैनेज करके रखेगा। तो ये कैसे करता है मैनेज, हाउ योर बॉडी मैनेजेस वेट। तो दो तरीके का फैट होता है आपके बॉडी में, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट। एक फैट बाहरी फैट होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू, ये स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है, ये बाहरी फैट है, एक्सटर्नल फैट। और दूसरा फैट होता है टिश्यूज के बीच में, इंटरनल फैट, जो बाहर नहीं दिखाई देता। जो पतले लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी विसरल फैट कहते हैं, इंटरनल फैट ज्यादा हो सकता, आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, मगर उनके टिश्यूज के अंदर फैट ज्यादा है, तो उनको क्या होता है, रेजिस्टेंट डिजीज होता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से टिश्यूज में, तो उनको डायबिटीज हो जाएगी। या ट्रांसपोर्टेशन अंदर नहीं है, फैट जो को घी है ना भाई, चाय की छन्नी में मलाई लगती है तो क्या छनता नहीं है ना, रुक जाता है। तो आपके टिश्यूज में अगर फैट जमा हो तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, फूड इधर से उधर नहीं जा पाता, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन, जो सफाई कर्मचारी वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे ना आपके शरीर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। इंटरनल फैट ज्यादा, विसरल फैट है, तो इसकी वजह से आपका शरीर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या करता है, जोर लगाता है अंदर से, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये नैरेटिव या ये ज्ञान आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। मैं आपको एक अलग नजरिए से समझा रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर आपके बॉडी में कम होगा तो बॉडी प्रेशर क्रिएट करके, क्योंकि इसको जिंदा रहना है, तो बॉडी वांट्स टू लिव, तो इट वांट्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, तो वो जोर लगाता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। अब
अगर आपके बॉडी के अंदर अंदर फैट ज्यादा है तो क्यों है? मेद कहते हैं, मेद का मतलब क्या होता है? डेंस मटेरियल, गाढ़ा तत्व। मेद का मतलब होता है गाढ़ा तत्व। तो एक पैटर्न है आपके बॉडी का मेद क्रिएट करने का, एक पैटर्न है। जरा उस पैटर्न को समझिए, मैं आपको ये पैटर्न समझा रहा हूं। सो व्हेन यू ईट फूड, जब आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट फूड, तो आपका शरीर उस भोजन को निचोड़ता है और उसका श्लेष्म पार्ट यूटिलाइजिंग मटेरियल और यूटिलाइजेबल मटेरियल, जो फूड का यूटिलाइजेबल मटेरियल है, इस्तेमाल करने का मटेरियल है, वो श्लेष्म है। उस श्लेष्म को वो ब्लड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट पकड़िए। अगर आपके बॉडी में ब्लड कम बन रहा है या ब्लड बनाने की क्षमता, खून बनाने की क्षमता आपके शरीर की कम हो गई है, जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं, खून बनाने की क्षमता अगर आपके शरीर की कम हो गई है, तो वो श्लेष्म क्या करेगा? वो अनयूटिलाइजेबल रह जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो फैट बन जाएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपकी शरीर की हड्डी को का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, हड्डियों का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, तो आपके बॉडी में जो मेद फैट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट ही रहेगा। दो तरीके से चीजें बताई मैंने आपको, अगर इसको ध्यान से समझें तो अगर आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी फूड को कन्वर्ट करने की शक्ति अगर आपकी अच्छी है, यानी ब्लड में कन्वर्ट करने की शक्ति अच्छी है, तो वो फूड डिपोजिशन जो स्टोरेज में जाएगा वो कम जाएगा। इसका मतलब स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो स्टोर्ड फैट है उससे क्या क्या बनता है? जो स्टोर्ड फैट है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बोन मैरो एंड जिसे हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम, ये चीजें बनती हैं। अगर हड्डी, मज्जा और बाकी एक्सट्रैक्ट, हड्डी से शुरू करते हैं, हड्डी या उसके आगे की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो आपके शरीर का मेद या फैट यूटिलाइज नहीं होगा। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपके शरीर में एफर्ट से होता है, जोर से होता है, जोर लगा के, हईशा। अब एक एग्जाम्पल भी लेंगे ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी। आपके पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी या उनकी एक जनरेशन पहले, जिनसे भी आप वाकिफ हैं या जानते हैं जिनको, उनमें और आप में किस चीज का फर्क है? उनके अंदर और आपके अंदर क्या फर्क हो गया? मालूम है ना उनको कितना शारीरिक मेहनत करना पड़ता था? आप आज वो कर नहीं सकते ना। एक फीमेल पानी 1 किलोमीटर दूर से 2 मटके सिर पे रखे, एक मटका साइड में लेके आ जाती थी, गीत गाते गुनगुनाते। आज आप करेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। वही उनको खेत में या फिर जिस तरीके का काम करना पड़ता था, उनको शारीरिक जोर, एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था, और वो लगाते थे शारीरिक एफर्ट, मगर परेशान नहीं होते थे क्योंकि उनकी एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। सभी अग्री करेंगे ना इस बात को? देयर फिजिकल कैपेसिटी वॉज मच मोर देन आवर फिजिकल कैपेसिटी। ये बात तो सभी मानेंगे ना। मुझे एक बात बताइए, अब मैं और जड़ में जा रहा हूं, यहीं पे नहीं रुकेंगे, पूरा सोल्यूशन चाहिए हमको, 100% गारंटीड सोल्यूशन चाहिए। और वही मैं आपका वही राज खोलने वाला हूं आपके सामने कि कैसे मिलेगा। जोर कैसे लगाते हैं आप? सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर मेरे साथ में, ठीक है? सबको करना है, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। उंगलियों को फंसा लीजिए, क्लास्प योर फिंगर्स और खींचिए, जोर लगाइए।
जोर लगा के। ये जोर कैसे लगाते हैं? हाउ डू यू मेक दिस एफर्ट? जरा सोचिए, कैसे लगाते हैं ये जोर? मसल से, माइंड से? नहीं 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 नहीं, अभी आप सही पॉइंट पे नहीं आए। और क्या जोर, कहां से जोर लगाते हैं? विल पावर से? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं आए आप सही पॉइंट पे। प्रैक्टिकल चाहिए। ये हवा वाली बातें हम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे 100% प्रैक्टिकल बात करेंगे। ये जोर कैसे लगाते हैं? स्ट्रेंथ कहां से आता है, ये तो मैं पूछ रहा हूं गुरप्रीत साहब। स्ट्रेंथ कहां से आता है? हाँ एग्जैक्टली, अब मैं जो बोल रहा हूं ना वहां ध्यान देना। दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उंगलियों को क्लास्प करें। अब मैं जहां बता रहा हूं वहां पे ध्यान ले जाना अपना। देखिए स्ट्रेंथ कैसे जनरेट होता है। पुल कीजिए जोर लगा के, जोर लगाइए, पूरा जोर लगाइए। देखिए आप सांस रोकते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ। तो आप स्ट्रेंथ कैसे जनरेट करते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। एफर्ट कैसे लगाते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, पुश। एक पाम को सीधा रखिए, एक से मुट्ठी बांधिए, जस्ट पुश, पुश हार्ड। देखिए यू होल्ड योर ब्रेथ, पुश हार्ड, होल्ड योर ब्रेथ। जंप कैसे करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड जंप अप, और ऊपर से नीचे आपकी सांस रुक जाती है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, घर के कामकाज करना, शरीर से कोई भी वेट उठाना, कैसे करते हैं आप? ये एफर्ट इतने सारे कैसे लगाते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाउ डू यू डांस? हाउ डू यू सिंग? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपके एफर्ट मेकिंग का कोर क्या है, जड़ क्या है? ब्रेथ होल्ड। आपने एफर्ट मेकिंग आपकी वीक हो गई, क्या वीक हो गया? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी वीक हो गई। एफर्ट अगर आपकी वीक हो गई तो क्या वीक हो गया? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी वीक हो गई। क्या आपने इंप्रूव करने की कोशिश की इसको? आपने तो इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर वेट बढ़ रहा है या चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही, यूज नहीं हो पा रही। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसको हम। वो क्या है? वो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है। आप दवाई ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं दवाई से किसी का तो इलाज नहीं हुआ, फिर भी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं ये कैसे होता है। वही मैं राज खोल रहा हूं आपके सामने, सीक्रेट। ठीक है, तो एक पक्ष, अभी तो एक ही पक्ष बताया। ठीक है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। अगर मैं केवल कुंभक, इसे कुंभक कहते हैं। एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी, एनी लाइफ इज कॉल्ड एज कुंभक। जोर लगाता है जैसे कोई भी जीव इस संसार में, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो, वो भी कुंभक से ही जोर लगाते हैं। बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? एक जगह लो प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट होती है। हाँ या ना? सबने पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, बारिश ऐसे होती है। तो ये प्रेशर रेगुलेट करना ही कुंभक कहलाता है। तो प्रकृति कुंभक करती है, तब बारिश होती है, हवा चलती है। आपके शरीर के अंदर कैसे काम होते हैं? कितने लोगों ने लाइफ में कभी भी छींक नहीं मारा? छींक नहीं आई किसी को? ऐसा कोई होगा? सबको आई होगी कभी ना कभी। क्या आपने कभी नोटिस किया छींक मारने से पहले सांस रुकती है?
नोटिस किया नहीं किया? मगर सबको एक्सपीरियंस में ये होगा, सांस रुकती है फिर छींक आती है। अच्छा, उल्टी किया होगा, वॉमिट किया होगा, वॉमिटिंग से पहले क्या होता है? सांस रुक जाती है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को कभी ना कभी फिजिकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस हुआ होगा। ऑर्गेस्मिक एक्सपीरियंस क्या होता है? जहां सांस रुक जाती है। बिना सांस रुके शरीर काम नहीं करता, मगर बिना सांस रुके अलग अलग प्रोपोर्शन में, अनुपात में आपके शरीर के ऑर्गन्स भी काम नहीं करते। तो अगर आपका लिवर कमजोर हो गया, पैनक्रियास कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गया, गोनाड्स कमजोर हो गए, हार्ट कमजोर हो गया, तो क्या लूज किया आपके ऑर्गन ने? कुंभक कैपेसिटी लूज कर दी। इसीलिए दवाई से कोई भी डायबिटिक ठीक नहीं होता, मगर कुंभक करने से ठीक हो जाता है। दवाई से हार्ट मजबूत नहीं होता, मगर कुंभक करने से हार्ट मजबूत हो जाता है। दवाई से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड ठीक नहीं होता, मगर कुंभक करने से ठीक हो जाता है। इसलिए इस तरीके के हम सारे प्रोग्राम रन करते हैं और सैकड़ों हजारों प्रूफ हमारे पास में हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका शरीर काम कैसे करता है। अगर उसकी काम करने की क्षमता, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कम हो गई है, तो आपको उसको वो बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। एकमात्र इलाज आपका शरीर है। दवाई आपका कोई इलाज नहीं करता है। आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज. It is only in the last 100 years we are getting into all kinds of disease, and every disease is increasing, not decreasing. तो आपको वो समझना पड़ेगा ये शरीर काम कैसे करता है। अच्छा, अब अपने घर में एक दिन आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कोई मजदूर बिल्डिंग बना रहा हो, लिपाई पुताई कर रहा हो, है ना, ईंटें चढ़ा रहा हो, ऐसा कोई मजदूर आपको आसपास में मिले तो उसको घर में इनवाइट कीजिए कि आज चल मेरे घर खा, भोजन कर ले मेरे घर, ठीक है। और अपने घर के ही किसी मेंबर को भी साथ में बैठाएं और दोनों को भोजन परोसें, फूड दोनों को परोसें। किसकी डाइट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मजदूर की डाइट ज्यादा होगी ना। उसको कोई फैट फूड का डर नहीं होता। ओके ओके, आई थॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग ऑन. Sahana, you should have told me earlier. So I'll switch between English and Hindi. So if you invite a worker, a construction worker, and serve food with one family member by his side, whose diet will be more? Obviously, the worker's diet will be more. And he doesn't have to worry about weight increase. He doesn't have to worry about that. Why? Because he is doing heavy activity, and through that activity the body will be able to utilize the food. But the real question is you can't go back to the same kind of a worker's lifestyle or the lifestyle of your ancestors. You can't go back to that. And even if you try,
even if you try, you might land up in a heart attack condition. So, have you heard of these examples? 19-year kid started playing badminton, got into heart attack. Why? Because the organs are weak. If you force your body to do a lot of activity, it might collapse. So when we change the lifestyle from active lifestyle or lot of physical activity to less physical activity, what did we do to balance it out? जब हमने अपना लाइफस्टाइल बदला तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या काम किया? नथिंग. Now, you can't make more physical effort at this point of time. But let me tell you, you can make internal effort very easily at this point of time. By making internal effort, your organs will become strong. And then after some time, even if you make a lot of external effort, you will not land into problem. How can you do this internal effort? Kumbhak is internal effort making. भाई बाहर का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है ना, वेट उठाया और एरोबिक्स रेजिस्टेंट एक्सरसाइज किया, किसी के अगेंस्ट में जोर लगाया. यू नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस. External resistant exercises will impact external fat, not internal fat or visceral fat. But internal resistant exercises will reduce visceral fat, which is major risk in your body. External fat is not risky. Internal fat is the real risk of your body. So you will have to do internal resistant exercise. By doing activity outside, you don't do internal resistant exercise. But by holding the breath in different order, you do internal resistant exercise. This is the only way to do internal resistant exercises, reduce visceral fat, reduce all kinds of resistance in the body, improve the flow, improve the transportation. It can be hormonal flow, blood flow, lymphatic flow. If you improve lymphatic flow doesn't improve by external activity, it improves by internal activity. You can also improve your detox factor. Then by doing internal resistant exercise, it's not a very appropriate term, so I'll say by doing Kumbhak, you improve hormonal flow, you improve blood transportation, blood flow, you improve lymphatic flow, you improve thereby organ strength and function. ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं, ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं. इंटरनल एक्सटर्नल कैसे हुआ? Now you make an effort on something which is outside, on something which is outside. So I'll give you an example. मैं example दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए. If you push a wall, अगर दीवार को धक्का दीजिए, what are you doing? You are making an external effort. ठीक है? Now one more example, but practical example. So what you will do? You will inhale from your mouth, full inhalation. Then you will hold your breath, and what you will do?
you will push the air that you have taken in towards the ground. जमीन की तरफ में जो हवा है इसको पुश कीजिए. चलिए सभी करते हैं. Let's do. Inhale from the mouth. मुंह से सांस भरना. मुंह से सांस भरना. Inhale from the mouth. Hold the breath. And the air that you have taken in, push it down. एनस की तरफ में ध्यान दीजिए. मल द्वार. Push it down towards the ground. What kind of effort you are making? Internal effort? Isn't it? Internal effort. This is Kumbhak. This is Kumbhak. Now we can make hundreds and thousands of formula of internal effort making. You can relax. You don't have to hold your breath forever. Whenever, till whatever your capacity, you can hold your breath and then you can relax. So we can make formulas, internal effort formulas. One formula, the effort gets directed towards your liver. Another formula, the effort gets directed towards your kidney. Another formula, the effort gets directed towards another organ, which can be your brain. Through this, we can create actually thousands of formulas of Kumbhak, but everybody doesn't need all the formulas. So what do? We find out what effort making of your organ or your body has become weak. So we do one of its kind of a diagnosis in the whole world. This is called as Prana Shakti diagnosis. Right? So a vertical of that Prana Shakti diagnosis is Dhatu Shakti diagnosis. What does it mean? Which organ has become weak inside your body and what effort making has become weak inside your body. So the umbrella is Prana Shakti diagnosis. Through this diagnosis, we diagnose what capacity your body has lost, effort making capacity. So we don't need any blood samples. We don't need any kind of a sample of your body. We just want you to do some experiment with your body and write down the numbers to us. If you do a little experimentation and observation of your body, अगर शरीर के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करो और कुछ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ नोट डाउन कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे. Through that we analyze the system and find out, come to a inference that this particular effort has become weak in this particular body. If we improve, if we give you a practice, customized practice to improve that kumbhak or that effort making, you will see your problems, not only one problem, multiple problems you can come out of. Because ultimately, it is your body which actually treats you. No medicine treats human body. This you have to understand. Because there is not a single proof of treatment. So medicine cannot treat your body, but Kumbhak can help you come out of your problem. It can be any kind of problem. Complete it, 100% reversal can be done by your body, not your any medicine. And if your body's metabolism improves, effort making ability improves, then you won't have to worry about, because your body will be utilizing food to its optimum level, making all the tissues and transporting all the ingredients to all the organs and tissues. So your regeneration,
regeneration strength will be good, your organs will regenerate properly, and later on in your life, you will not get into any chronic disease. What are chronic disease? All the metabolic disease, diabetes, thyroid, and autoimmune disorder, mental issues like depression, attention deficit, heart disease, lung function, any disease related to lung function. If a second attack of corona happens, you won't even need medicine. Your body will be strong to recover from any kind of infection also. And now I'm coming to immunity. Right? Now I'm coming to immunity. What is immunity? So, if you go from land area, low land area to high mountain area, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली आपको मालूम है. अगर जमीन से पहाड़ों के ऊपर जाएंगे आप, डू यू थिंक यू नीड एक्लेमेटाइजेशन? जब आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है तो एक्लेमेटाइज किया जाता है. 1-2 दिन लग जाते हैं आपको उस नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए. सो योर बॉडी नीड सम टाइम टू एडजस्ट टू अ न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन और एक्लेमेटाइजेशन. कहा जाता है ना, adaptation to a new kind of environment. In the last 100 years, have we changed the environment? Yes or no? 100 साल में वातावरण बदल दिया, फूड बदल दिया. Have we changed the food? Hybrid, inorganic process, genetically modified. Have we changed the food? Have we started bombing the body with chemical medicine? Have we started bombing the body with chemical medicine? So we have created a new ecosystem. हमने नया वातावरण बना दिया ना. What we are putting in our body and external environment, दोनों बदल दिया ना. Do you think your body needs acclimatization or adjustment? Yes or no? इस नए इकोसिस्टम के लिए क्या आपके शरीर को एडजस्टमेंट की दरकार है, जरूरत है, अडेप्टेशन की जरूरत है? तो वो अडेप्ट कैसे कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा है. ये क्या है? ये बीमारी है या एडजस्टमेंट है? इज दिस डिजीज और एडेप्टेशन? क्वेश्चन मार्क. आई एम पुटिंग योर क्वेश्चन. आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. आप सोचते हो ये सफेद कोट और ये फिरंगी समझदार होते हैं? ये सबसे मूर्ख प्रजाति है. इस पृथ्वी पे पैदा होने वाली सबसे मूर्ख प्रजाति ये वेस्टर्न गोरे लोग हैं. ये धोखा दे के जीते हैं और आप इनके धोखे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं. कोलोनाइजेशन करते हैं, लूटपाट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर आप उनको सर पे बैठा रखा है. सारी आपके बच्चे बिगाड़ दिए उन्होंने. अभी भी आप नहीं समझ रहे, उनकी जेनेटिक डिजीज क्रिएट कर दी है. 2 साल 3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं. ह्यूमन जीनोम हैज गॉट डिविएटेड इन द लास्ट 100 years. डू यू नो दिस? आंखें कब खोलेंगे? सबसे समझदार प्रजाति आपके पूर्वज थे, आपके बाप दादा थे. तो इनकी बातें सुनना जब तक जारी रखेंगे तब तक अपने आप को बर्बादी करेंगे आप. तो नए एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए?
to survive in the new kind of environment. Your body is trying to adjust, adapt to the new environment. You are calling it disease. आपका शरीर तड़प के किसी तरीके से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं गलत है. What are all kinds of medicine that you are taking in? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, पैरासिटामोल पेन किलर जो आप लेते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर. क्या सुनाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना किसी रॉकेट का नाम है, बॉम्ब का नाम है. कीमोथेरेपी, मस्टर्ड गैस. ये आप अपने शरीर पे कर रहे हैं और आप सोचते हैं हेल्थ मिल जाएगा. आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो और कुछ भी नहीं. गलत संगत से ना कभी अच्छा काम नहीं होता. संगत बुरी हो गई है. लाखों सालों से इस शरीर ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की. अभी तो ये बीमार हो रहा और ये सारे काम कर रहे हैं हम उसके साथ. आप टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलते हैं. इस शरीर को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलते हैं और उसको आगे साइंस का टैग भी लगाया हुआ है मार्केटिंग के लिए. तो आपका शरीर स्ट्रगल कर रही है, बॉडी स्ट्रगलिंग. सी आई हैव नॉट सेड इट इन इंग्लिश बिकॉज अंग्रेजी में वो जोर नहीं आएगा जिस तरीके से मैंने उनको बोला है. सो दैट इज व्हाई आई सेड फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए. आई कांट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. तो कहने का मतलब, सो व्हाट आई एम सेइंग इज योर बॉडी वांट्स अ लिटिल मोर टॉलरेंस, सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. वो स्ट्रगल कर रहा है न्यू इकोसिस्टम में, आपको उसको और टॉलरेंस उसका बढ़ाना है. यू हैव टू इंक्रीज द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी. सो टू गिव यू अनदर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल देता हूं. Whenever you are passing through a red light in your vehicle, when you are passing through a red light in your vehicle, you see small kids asking for some money, है ना, भीख मांग रहे बच्चे मिलते हैं ना आपको. Those kids you will find in a winter season, in a rainy season, in a hot weather. They are always there, isn't it? They don't get into disease very easily. But kids living in a very good society, when rain happens, they go outside, they catch cold. So what is the difference? दोनों में difference क्या है? Tolerance, झेलने की क्षमता, tolerance. Now to convert tolerance into a practical method, what do you do? आप क्या एक्सपेरिमेंट करो, ये अभी नहीं करेंगे. Whenever you have free time, you can do this. जब आपके पास में फ्री टाइम है तो आप एक्सपेरिमेंट करो. 10 किलो की आटे की बोरी, 10 kg दैट क्या कहते हैं उसको, 10 किलो का बोरा वेट, एनी 10 kg वेट, यू ट्राई टू लिफ्ट अप. आप उठाने की कोशिश करें. हाउ डू यू लिफ्ट दैट वेट और एनी काइंड ऑफ वेट? यू जस्ट ट्राई टू लिफ्ट अप. हाउ डू यू लिफ्ट दैट वेट? उसको झेलते कैसे हो 10 किलो को अपने शरीर पे? डू यू होल्ड योर ब्रेथ? डू यू होल्ड योर ब्रेथ? नाउ इफ यू हैव टू लिफ्ट 20 kg वेट, what is more required? What is required more in your system? More breath holding capacity, isn't it? To increase the tolerance, what do you need to do? Improve the breath hold capacity, isn't it? Are you doing it? So if you
increase the breath hold capacity, your tolerance will increase, thereby getting into frequent infection or getting into some kind of a chronic infection will reduce drastically in your life. एक पांव पे खड़े हो जाएं कभी भी अपने फ्री टाइम में करेंगे. हाउ डू यू बैलेंस योर सेल्फ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. You are moving or you are in a bus, standing and holding a pillar, the iron rod, the pole of the bus. When the bus is going in a flat surface on a plain road, you can even drop the hold or leave the pole. You will be able to balance yourself. But suddenly the bus goes in a very tough terrain, up and down, rough terrain. What happens? You hold the pillar tight. What are you trying to do? You are trying to protect yourself, isn't it? You don't want to fall down. You want to protect yourself from falling down. But how do you hold tight? By holding your breath, isn't it? So your protection capacity increases by increasing your kumbhak capacity. Your immunity increases by increasing your kumbhak capacity. So, and I can give you thousands of examples. You are watching a horror movie, and most of you would have done that. If you are watching a horror movie, एक horror movie आप देख रहे हैं, and suddenly a scene comes, very fearful, fearing scene comes. What happens? You don't know, but unknowingly you hold your breath. Unknowingly you hold your breath. When somebody wants to hit you, you want to protect yourself. You hold your breath and tense your body so that the impact reduces. Your body doesn't get the impact of the hit. यही करते हैं ना, जब डर जाते हैं तो सांस रुक जाती है. जब कोई आपको मारता है तो आप सांस रोक के अपने आप को बचाते हैं. तो आपका रिस्क कम कैसे होता है? हाउ द रिस्क रिड्यूसेस इन योर बॉडी. हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क इन योर बॉडी? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. अब ये इतना रिस्क आप डाल रहे हो, जो साइड इफेक्ट ऑफ ऑल दोस मेडिसिन एंड फूड यू विल गेट. हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दैट? बाय इंक्रीजिंग द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी. This is also called as, in Ayurveda it is called as Vyadhi Kshamatva. Vyadhi Kshamatva. Ability to come out of a risk is called as Vyadhi Kshamatva. So, Kumbhak is the Brahmastra of Ayurveda. Please listen it carefully. Ayurveda का सबसे strong part, the most powerful part of Ayurveda is Kumbhak. Because by Kumbhak you reduce your Vata dosha, your Pitta dosha and your Kapha dosha. Through Kumbhak, by changing the pressure gradient of your body, you can control the Vata, Pitta, Kapha aspect of your body. Right? So, you know, Ayurvedic medicine take long time for result, isn't it? Because the plug-in is not there. You want the fan to work without plugging in into the socket. It will never happen. So the current of Ayurveda is Kumbhak. If you do Kumbhak and take any kind of Ayurvedic medicine, the result will be miraculous. But you don't need medicine to control all your factors throughout your life. Medicine is to be used for a very short term. Kumbhak is something which can be done throughout your life. So,
immunity. I told you about the weight, fat increase, why it happens. I told you about metabolism. I told you about immunity. And the last part of my presentation would be to tell you a little story about your body and why it is very important and necessary, urgently required in an emergency basis to help your body. It is in an emergency basis required to help your body improve its functions, improve its strength, and the recovery strength along with it. So, when you take any kind of food, the metabolic factor of your body starts functioning. But if you take any kind of substance which is not your food, then your body wants to throw it out, or it raises its alarm or immune response. Whenever a risk comes to your body, what is risk for this body? Anything which is not your food is risk. So your body is designed for metabolizing food. Now let me tell you, if you take any kind of medicine, is it your food or a risk? It is not your food, so it is a risk. That is why 95% of whatever you take inside this body, the body throws it out. 95% of your medicine is thrown out of this body by dissolving in water, and through urination this body throws out 95% of whatever medicine that you take, because your body was never designed for medicine. So medicine is huge risk. Now 5% is overloaded. This is called as dose titration is done so that liver bypass happens, so that medicine bypasses the liver function and enters your body. This is the first torture that you do to your body, right? So liver function is the first step of metabolism in your body. There are 6 steps of metabolism in your body. Through that, 7 different qualities of tissues gets formed. So this 6 metabolic strength of your body is called as Deha Bala, Dhatu Bala, Dosha Bala, Agni Bala, Mano Bala, Ojas Bala. Bala means strength, metabolic strength. And 7 qualities of tissues are formed inside your body. Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asthi, Majja, Shukra. Out of all those 7, one is Meda. Meda plays a very important role in reducing the risk of your body also. दोबारा से बोलो, ध्यान से सुनिए. Meda factor of your body. What is Meda factor of your body? Fat, cholesterol, triglyceride, fat, both fat, external, epithelial fat and visceral fat. So fat inside the tissue also. Fat आपके शरीर के रिस्क को कम करता है. So when you put lot of risk inside the body, your body increases cholesterol and triglyceride to reduce the risk, to make cortisol. So cholesterol, triglyceride, increasing cholesterol, triglyceride is risk mitigating mechanism of your body. Don't make it a culprit. When you bombard your liver with chemicals, you put some chemical on your skin, it will start burning, isn't it? You put a little fat, ghee on it, the burning will reduce. The liver also does that, because liver gets into inflammation. So for reducing inflammation, it increases fat, and you call it bad. You don't want your body to live. Whenever there will be lot of inflammation in the body,
the body will also increase the Meda factor to reduce the risk. Without decreasing the risk, if you reduce the fat, you are torturing your body. अगर रिस्क है और आपका शरीर फैट बढ़ा रहा है तो रिस्क कम करने के लिए बढ़ा रहा है. बिना रिस्क को कम किए अगर फैट कम करोगे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. राइट? सो बाय स्टार्विंग द बॉडी, by putting some kind of a chemical to reduce whatever impacts or whatever the symptoms you are getting in your body, it will not help the body at all. तो आपको क्या करना है? 2-3 चीजें दोबारा से रिकैप करता हूं. योर बॉडी इज नॉट अ कल्प्रिट. जो भी ये काम करेगा अपने को ठीक करने के लिए करेगा. यू वॉन्ट टू लिव और नॉट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट योर बॉडी वॉन्ट्स टू लिव, नो क्वेश्चन मार्क. So whatever your body does, it either decreases the risk, wants to decrease the risk, or wants to regenerate, create a balance. इसीलिए autoimmune disorder नहीं होता. Your body is frequently increasing the immunity because you are putting lot of risk inside the body. In the form of medicine, in the form of food which is not your real food, and of course the environment. So please don't treat your body as a criminal. Improve the metabolic factor of your body, improve the immunity of your body, increase the tolerance of the body, and then what you will see is your body will start coming to a certain sense of balance and strength. Thereby the fat metabolic strength of your body will improve and your body will be able to handle fat without the risk of what you call as starving your body. How you reduce the fat? By starving your body or putting some chemical. So without doing that, your body will be able to manage the fat, which is the right approach. And it can give you lot of other benefits. बहुत सारे और benefit मिलेंगे आपको. After person who is doing kumbhak, once the fat starts reducing, and the time period will be different for different people. Okay, depending upon the condition of your body, the momentum of disease, and the kind of torture that you have done to the body, उसके हिसाब से depending upon that different time लेगा. There are people who have reduced many kgs, 7-8 kgs within the first month, but there are people who have started losing after some time. That is the right approach. The moment your body is fat, metabolic strength will improve. Your body will balance out the fat, internal as well as the external fat of your body. ये चीज सबको करना ही चाहिए. This is how you can help your body, and it will also you will see lot of other disease or difficulties suddenly evaporate, goes off. Once you improve the mechanics of this body, the functional mechanics of this body, there are related difficulties in your life which will suddenly go out of your life. Not only that, your confidence will boost up, your mental strength will improve. If somebody is depressive, then they would come out of depression very easily. Somebody can't sleep properly because the metabolic rhythm is not proper. The moment metabolic rhythm improves, and a person who does kumbhak, हमारे पास में ऐसे बहुत example, there are lot of examples. People say they were taking a lot of medication for sleeping. Now after doing kumbhak, they have dropped every kind of medication and they sleep like never before.
So lot of examples, proof is there. The real thing is your body can treat you, heal you. Your body has the capability to recover from any disease and difficulties. Help your body recover yourself. And how your body functions? Through Kumbhak. So Kumbhak is that factor which keeps the health factor on, or the functional ability of your body, external, internal. It creates that ability. You just do Kumbhak, and there is a customization also in the program where we actually work upon the root weakness in your body. Thereby, lot of other improvements can be seen and has been seen. And if I keep talking, I can pull up one factor and keep talking about it, elaborating it, but then it will not help. So webinar is a platform to inspire you, work upon yourself. It's a platform to inspire you, to give you a completely out of the box kind of a narrative, which you can understand also easily. We can elaborate if you join the program. Lot of things will be elaborated later on. Each and every aspect which you want to know about can be elaborated, but here we have a time constraint, so I'll have to stop here, and then later on you can ask some questions which I'll answer, and in the meanwhile we'll listen to some testimonials and then how this program is conducted. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I'm sure we've got a little insight on how the body works and how you can come off your extra weight and lead a more satisfied life. So now I would request Anilji to please share the program details with the participants. So over to Anilji. Yeah. Thank you, Ratnaji. Give me a few moments and I'll share my screen. रचना जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. अमेधा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा प्रोग्राम डिटेल्स. जल्दी से जान लेते हैं प्रोग्राम डिटेल्स क्या है, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्लासेस कब होंगी, कैसे कैसे होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, this is a guided program which is conducted online on Zoom app by trained कुंभक मेंटर्स. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो Zoom ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. कुंभक मेंटर्स जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ये पहली बात हुई. प्रोग्राम ओवरव्यू. दिस इज अ 6-week program which will consist of 18 live classes, 3 live classes every week. Then there's a प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. स्वामी जी ने इसकी बात वीडियो में भी की है, जिससे वो पता कर पाते हैं कि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वेट इश्यू हो, फैट इश्यू हो, या इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज है. इस प्रोग्राम में जो अमेधा श्लेष्म शुद्धि प्रोग्राम है, इसमें प्राण शक्ति डायग्नोसिस किया जाता है. इसकी और भी डिटेल में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल ऑल्सो. एंड देयर इज अ customization class. What is this customization? We'll talk about that also. Batch 18th is starting on 14th December at 7 p.m., which is Thursday. First 2 classes will be on, like first class will be on 14th, second will be on 16th, which is Saturday. And from next week onwards, classes will be on Mondays, Wednesdays, and Fridays. We'll give all the details in the WhatsApp group and in the chat also just now. What is the class experience like? As you must have understood by now, these will be live sessions. अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये live sessions रहेंगे Zoom ऐप के ऊपर. Mentors watch all the participants in the class because it's an online program, so you have to keep your cameras on during your classes. That is compulsory. क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, हमारे जो मेंटर्स होंगे वो आप सभी को कैमरा पर देखेंगे ताकि वो बता पाएं कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं. सो कैमरा ऑन रखना जरूरी होगा आपकी क्लासेस के दौरान. विल बी रिटन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं. सेशन रिकॉर्डिंग्स आर गिवन.
सेशन रिकॉर्डिंग्स क्या है? दीज आर क्लास रिकॉर्डिंग्स, जो क्लास लाइव होंगी उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है और आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती है. दीज आर अपलोडेड टू योर कोर्स डैशबोर्ड फॉर विच यू विल गेट अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. There'll be a lot of extra things that you'll be getting during the program, like mental practices, unique diet perspective. This is a diet perspective because there are no diet plans in this. You'll get a video from Swamiji in which he talks about how to use food so that it supports your body. आपको एक वीडियो मिलेगा स्वामी जी का जिसमें वो बताते हैं कि खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि जिस तरीके से हम खा रहे हैं वो हमें नुकसान ना करे, हमारे शरीर को सपोर्ट करे. So there'll be a diet perspective, not a diet plan, because there are no diet plans in this. Then simple detox processes will be given, and a lot of knowledge will be shared during the course of 6 weeks. And before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. अ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई जादू की कोई दवाई ढूंढ रहे हैं या फिर एकदम तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए. We get a lot of people who ask how much weight will I lose in 1 week, 1 month. काफी लोग पूछते हैं कि मेरा एक वजन कितने दिन में कम हो जाएगा, एक हफ्ते में, एक महीने में कितना हो जाएगा. If you paid attention to Swamiji's video, he talks about this particular question. स्वामी जी इसके बारे में बात करते हैं वीडियो में जो अभी हमने दिखाया था कि सभी का शरीर अलग अलग तरीके से लूज करेगा वेट, क्योंकि क्या रिस्क है बॉडी में, क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स और हैं, तो सभी के लिए टाइम अलग अलग लग सकता है. बट क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते में बता पाए या फिर एक महीने में. बट दैट इज डेफिनेट. It's a guarantee that the weight will reduce, but it will take different time for different people. So अगर आप मैजिक पिल या कुछ जल्दी वेट का ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोग्राम नहीं है आपके लिए. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी. ये भी लास्ट पॉइंट से कनेक्टेड ही है. अगर आप तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो आप मार्केट में एक तरीके से कह लीजिए वेट लॉस प्रोग्राम्स है, आइदर दे आर बेस्ड ऑन डाइट और एक्सरसाइज. थ्रू कंट्रोलिंग द फूड you are controlling the calories that you are taking inside the body, and through exercise you are spending those calories that have already got into the body. खाने की डाइटिंग से आप कंट्रोल कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैलोरी ना जाए, और जो आ चुकी हैं वो एक्सरसाइज निकालने की कोशिश करते हैं. ये दो मोस्ट पॉपुलर वेट लॉस आइडियाज हैं. आइडियाज में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एज सुन एज यू लीव योर डाइट, एज सुन एज यू लीव योर एक्सरसाइज, यू आर बैक टू योर original weight, or and in some cases more weight than before also, because those are temporary solutions. Unless you work on the metabolism, a permanent solution is not possible, right? किसी चीज को काट देना या किसी चीज को अवॉइड करना कैन नॉट बी अ ट्रीटमेंट. लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकता. तो लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चाहिए होता है तो आपको काम करना पड़ेगा. एंड फॉर दिस इफ यू आर नॉट रेडी, then this program is not for you. Then you can go for diet plans or a lot of other weight loss programs are there. Okay. And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day to do your daily kriyas. You will be required to do your daily kriyas. Initially, this will take you 60 to 70 minutes every day to do your daily कुंभक क्रियास. आपको लगभग 60-70 मिनट डेली लगेंगे अपनी कुंभक क्रियाओं को करने के लिए, क्योंकि शरीर के ऊपर काम करना है ना. तो इतना समय आपको इसमें लगेगा. अगर ऐसा समय आप नहीं दे सकते तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. सेम, लगभग सभी का सेम मतलब है, अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं. पेशेंस रखना होगा अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए. अगर नहीं रख सकते हैं तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन ना करें. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सब टिप्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज all of you must have seen an advertisement on Facebook or Instagram in which we advertise that there's a free introductory webinar. But a lot of people misunderstand that the program is free. This program cannot be free because this has to be done under supervision. काफी लोग ये समझते हैं प्रोग्राम फ्री है क्योंकि
वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो गलत समझ लेते हैं जब हम एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं कि एक फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार है जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं, वो फ्री है बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है। कुंभक का ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं होता है, उनको बताने के लिए पैसा थोड़ी लेंगे आपसे। बट जो ट्रीटमेंट है 6 वीक्स का, उनका फीस होता है, और वो नॉमिनल फीस है बिकॉज ये हम सुपरविजन करना होता है आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एक वेबिनार प्राइसिंग है उन लोगों के लिए जो लाइव ये अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने डेडिकेटेडली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। Normal pricing is 9,500 for the 6 week program, but for people who are attending it live, 5,500 only, including everything which I'll be talking about, all the classes and everything. Payment methods क्या क्या है? Debit card, credit card, net banking, GPay, UPI, cash deposit in the bank, also bank transfer, international payments के लिए credit card और PayPal. How to enroll? First step is to pay the program fee. Then you post the payment receipt in the WhatsApp group. अब प्रोग्राम फी पे करने के बाद ये रिसीप्ट जो है आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में है। नेहा फ्रॉम आवर टीम, शी विल कंफर्म योर पेमेंट एंड देन शी विल सेंड यू फर्दर इंस्ट्रक्शंस ऑन योर पर्सनल नंबर। हमारी टीम से नेहा आपकी पेमेंट को ग्रुप में ही कंफर्म करके आपको लिंक्स भेजेंगी आपके पर्सनल नंबर पर, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी। एंड देन स्टेप 3 इज टू सबमिट योर डिटेल्स टू एक्सेस कोर्स डैशबोर्ड. I talked about the recordings being available, all the class recordings. So for giving this access, you'll be required to submit your email ID and phone number so that we can create those IDs for you, those login IDs for you. Then you join the class WhatsApp group where you will get daily support. I will talk about it in detail also. डेली बेसिस पर आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वो क्लास ग्रुप में आपको सॉल्व होगा। उसमें डाउट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और डाउट्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। नाउ व्हाट ऑल यू गेट इन द प्रोग्राम? द फर्स्ट पॉइंट इज प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. Swamiji talked in the video also, but I'll explain again. What is this diagnosis? First of all, this is an online diagnosis. And secondly, this is a non-medical diagnosis. तो ये होता कैसे है? अगर ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है और ऑनलाइन में ही होता है तो कैसे होता है, कैसे करते हैं? यू विल गेट अ फॉर्म, an online form, and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions and write those down in the form. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाएगा अपनी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर, और वो लिखना होगा फॉर्म में। सेकेंड थिंग दैट यूल बी डूइंग इज यूल बी राइटिंग अबाउट ऑल योर हेल्थ इश्यूज इन दैट फॉर्म। दूसरा जो आप लिखेंगे इस फॉर्म में, अपनी जितने भी परेशानी है, जो हेल्थ इश्यूज है, स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसमें लिखेंगे। And the third thing that you'll be required is to upload a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, but there have to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज आपसे चाहिए होगी इस फॉर्म में, एक सेल्फी फोटोग्राफ जिसमें चेहरा बहुत क्लियर दिखता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो। तो जब ये तीनों चीज स्वामी जी के पास जाती हैं तो वो एक डायग्नोसिस कर पाते हैं, जिससे उनको पता लग पाता है कि कौन सी वीक फैक्टर्स हो गए हैं बॉडी में, वीक फोर्सेस। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना हो जो अभी हमने प्ले किया था, उसमें स्वामी जी इसकी बात करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट 3 क्लासेस पर वीक। जैसे मैंने बताया, हर हफ्ते 3 क्लास रहेंगी, लाइव क्लासेस, 60 to 70 मिनट्स उसकी अवधि रहेगी। दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास. Class recordings will be made available to you, and this access to all the recordings will remain with you for 6 months. 6 महीने तक आपके पास ये क्लास रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहता है, आप देख पाएंगे इनको। And 6 months is a good enough time to learn all the kriyas by heart and take notes and do all kind of note taking as per your convenience. Then separate videos of all the kriyas will also be given. हर एक क्रिया का एक छोटा छोटा वीडियो भी होगा। एक तो क्लास रिकॉर्डिंग हो गया जो भी 60-70 मिनट का, उसके अलावा अलग अलग क्रियाओं के छोटे छोटे वीडियोस भी मिलेंगे, ताकि आप उसी क्रिया का जो आपको क्लियर नहीं है, जो आपको समझ नहीं है ठीक से, उसका वीडियो प्ले करेंगे और आप समझ जाएंगे। देन रिटन इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर, लिखित निर्देश रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एंड देन डेली सपोर्ट इन द क्लास ग्रुप. In the last point, I talked about joining your WhatsApp class group. This is the place where you will be asking your doubts and questions in.
because 3 days of the week you'll be live with us. The remaining days of the week you'll be practicing on your own. And if you have any doubt that time, this is the place where you'll be asking. हर हफ्ते जैसे मैंने बताया 3 दिन आप हमारे साथ लाइव रहेंगे, बाकी जो हफ्ते 4 दिन बचते हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे जो आपको सिखाया गया होगा। और उस समय जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस समय अगर कोई ऐसा डाउट आता है, कोई ऐसा सवाल आता है आपके दिमाग में, तो आपने इस ग्रुप के अंदर पूछना है। हमारे मेंटर्स इसी ग्रुप में ऐड होते हैं और वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। देन कस्टमाइजेशन ऑफ क्रियाज एज पर द पीएचडी। पीएचडी क्या है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म। जो आपका फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया प्राण शक्ति डायग्नोसिस के बारे में, उसके आधार पर आपकी क्रियाओं को फाइन ट्यून करेंगे स्वामी जी, उसको कस्टमाइज करेंगे आपके डायग्नोसिस के आधार पर। योर क्रियाज विल बी फाइन ट्यून्ड एंड कस्टमाइज्ड based on your Pran Shakti diagnosis, which is the first point in this slide. So everyone will get different kriyas during their customization, because uh, let's say there are 10 people with same health issue. Let's say they have sleep issues. So the reason can be different for everybody as per the diagnosis. So everyone will be given a different kind of kriya, which will address the root cause. This is very important to understand. That 30 days of extra support is given after the program is over. After the 6 weeks are over, you still get 30 days of support inside your class WhatsApp group. This is the only program that offers support, and that too of a full 30 days. ये हम क्यों करते हैं? Why do we do this? Because many times, many participants, they miss their classes due to various reasons. Sometimes it's a function in the family, sometimes they're traveling, sometimes they fall sick. So we give another 30 days of support. The class group that you'll be added to as soon as you enroll, that will remain active for another 30 days after the 6 weeks are over. So need not worry if you miss any classes. Recording भी होती है and the lot of access, but still if you want to address your queries in the group, this is the way you'll be doing it. How do you make sure that you understand everything? काफी लोगों का ये सवाल होता है कि आप कैसे निश्चित करते हैं कि सभी को हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या हम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है ना ये। There's a 8 level of bulletproof support. That is the magic of this. वो 8 level का सपोर्ट क्या है? फर्स्ट इज द डाउट्स क्लियर इन द लाइव मेन क्लास एंड द प्रैक्टिस क्लास। आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी इंस्ट्रक्टर के पार्ट के बाद, जब इंस्ट्रक्टर बता चुके होंगे उसके बाद आपको मौका मिलता है, दैट इज लेवल 1। लेवल 2 इज थ्रू रिटर्न इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। लिखित निर्देश जो मिलते हैं वो दूसरा लेवल है हमारा सपोर्ट का। तीसरा लेवल क्या है? क्लास रिकॉर्डिंग्स फॉर वॉचिंग अगेन इफ यू मिस्ड एनी क्लास, और इफ यू वांट टू watch again and see how the particular kriyas were done. Then that's level 3. Then small videos of all the kriyas. छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे हर क्रिया के, ये भी मैंने बात किया था, ये चौथा लेवल का सपोर्ट है। Then 6 days support inside the class WhatsApp group. आपको डेली सपोर्ट मिलेगा संडे को छोड़कर। ये हमारा लेवल 5 होगा। डाउट्स क्लियरिंग जूम सेशन 11 AM to 1 PM एंड देन 9 PM to 10 PM। ये हमारे स्पेशल मेंटर्स अवेलेबल होते हैं 11 से 1 बजे तक। 3 दिन का ये टाइम होता है और 2 दिन अवेलेबल रहेंगे रात को 9 से 10 बजे तक। ये हम क्यों करते हैं, इतना सपोर्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और हम इस ऑनलाइन प्रोग्राम को एक ऑफलाइन प्रोग्राम से भी बेटर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेंगी कि आपको समझ ना आए, ये गारंटी है 1000%। बिकॉज सबसे जरूरी बात है ये क्रियाओं को ठीक से करना, ठीक से समझना और करना। ठीक से समझ के करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अगर गलत क्रिया करते हैं कुछ नुकसान नहीं होगा, बट जो रिजल्ट आपको चाहिए उसमें देर लिख सकती है या शायद ना मिले। तो इसीलिए इतना लेवल का सपोर्ट हम कर रहे हैं। देन लेवल 7 का सपोर्ट क्या है? पर्सनल फीडबैक एंड सपोर्ट ऑन द फोन। आपको हमारी एक टीम है जो ऑनलाइन में आपसे टेलीफोन पे कांटेक्ट करती है। आप उनको
वो आपसे फीडबैक लेते हैं, वो आपसे समझते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा लेवल 7 हो जाता है। 30 डेज ऑफ एक्टिव सपोर्ट, इसकी भी मैंने बात की। 8 लेवल का सपोर्ट। अब कोई चीज बचती नहीं है कि आप गलती कर पाए। ये गारंटीड है कि आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गलती तब होगी जब आप ये 8 लेवल का जो सपोर्ट है अगर उसके सहारा नहीं लेंगे तो। इफ यू डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस 8 लेवल ऑफ सपोर्ट, देन यू विल मेक, देन देयर इज अ चांस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। बट इफ यू फॉलो दिस, देयर इज नो चांस एट ऑल। वी मेड इट बेटर देन an offline program. So just be assured and you can enroll in the course. Then this is the team that will be taking care. There are more team members, but mainly these are the main ones that you'll be in touch with. We have Rachna Srinivas. She is the program director and the host of this webinar. Shalini Bhagwat, she is the class manager. ये आपकी बैचेस देखती हैं, कौन से मेंटर्स किसको असाइन, कौन से बैच को असाइन करने हैं। रंजना स्वेन ये मेंटर हैं, सीनियर मेंटर है। विभा, देन गंगा अनदर मेंटर। हिमांशु रेड्डी ये टेक्निकल में है, जो आपकी जितनी भी क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड करने के लिए, रिटन इंस्ट्रक्शन है वो अपलोड करने के लिए, अगर कोई वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो आपकी हेल्प करने वाले हैं हिमांशु रेड्डी। अनिल चौहान, दैट्स मी। मैं व्हाट्सएप एडमिन हूँ। कोई भी आपका सवाल बचता है इस वेबिनार के बाद तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी जो वेबिनार ग्रुप में आप सभी हैं उसमें आप सवाल अपना पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। हमसे जवाब नहीं बनेगा तो स्वामी जी से पूछकर आपको बताएंगे। द नेहा उपाध्याय, शी इज द एनरोलमेंट इंचार्ज। शी इज द पर्सन यू विल बी टॉकिंग टू द मोस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर क्लासेस। नेहा आपकी पेमेंट कंफर्म करेंगी, वो आपको लिंक्स भेजेंगी और ये पूरा एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। And with this, I come to the end of my presentation. I hand over the webinar back to Rachna. Namaskar. Raji, please take over. Are you there? Okay. Neha, do we have any live testimonies for now? Yeah, we do Yes, have a live testimony. Neha, can you please announce the name? Vijay Gupta. Vijay Gupta, sir. Yeah. So Vijay Gupta, sir, can you please tell us about your journey of Ameda? Vijay Gupta, sir, am I audible? नहीं, विजय गुप्ता जी तो नहीं है। नहीं कविता है। गुप्ता जी। Kavita, ma'am, are you there? Kavita Chudiwal, Kavita Gupta, ma'am. Ma'am, Rohini, ma'am. Okay. Rohini Bhalerao, ma'am. Dr. Rohini, ma'am. Yeah, I'm here. Am I audible? Yes. Thank you so much, ma'am, for joining us, being a doctor in your busy schedule. I'm a doctorate actually. I'm not a physician. Okay. But anyway, let me introduce myself. I'm Dr. Rohini Bhalerao. I'm a professor in an engineering college in Pune. And I wish to thank the organizers for giving me this opportunity to share my experience with all of you. I had actually been attending and I had attended Ashtanga Chikitsa Yoga workshop earlier before I had joined the Ameda workshop. And I had been doing this yoga and Kumbhak practice very regularly the moment I get up early in the morning. And I wish to share some experiences of the workshop that I had attended earlier and then subsequently what happened in the Ameda workshop. I just urge you to have a little bit of patience. My energy levels were quite high, I mean good enough earlier, but post-COVID, I was seriously ill, and due to the use of steroids, I had become diabetic.
And so my energy levels had reduced. But post this Ashtanga Chikitsa Yoga, I found that my energy levels were more sustained. I had also experienced that my sense of balance and ability to stand on one leg had become very, very reduced. So I couldn't stand, without falling down, without feeling giddy. But now my sense of balance and my ability to stand even on a single leg has become far better. I had multiple fractures in my knees and feet. I had accidents before, and due to which I was unable to fold my knees, sit down straight. I could not do Vajrasan. I could do a little bit of Balasan, but that was with a lot of difficulty and pain. I'm now able to sit down straight for a few seconds, holding a chair directly. It hurts inside the knee, but I'm still able to do it. I can do Vajrasan for a few seconds with a little bit of pain, but I'm confident that if I keep doing this slowly and as I keep stretching myself further and further every day, I'm surely going to improve. I had COVID-induced pneumonia, and this had led to severe hypoxia. I was admitted in the hospital for 10 to 11 days, and I had lost my lung capacity almost completely. And post-COVID also, my pulse rate has always been high. But since I was doing this yoga, my lung capacity has improved, and Ashtanga Yoga and Kumbhak have also added to my recovery. When I had just started, my exhalation was very fast. And when I tried to make it slow, there was a burning sensation that I used to feel in my chest. But now I'm able to have a better control over my breath. I'm able to breathe out slowly, and the burning has also reduced. My sleep was also very disturbed due to long COVID. And this has disturbed my productivity at my workplace. As I mentioned to you, I'm a professor in an engineering college. But now I'm sleeping better. At least 4 to 5 days in a week, I sleep for about 7 hours, getting up only once, rarely twice in the night. After Amida, so this was my experience of Ashtanga Chikitsa. And now after Amida Yoga that I had joined a couple of months back, my experience is as follows. I feel very light. My stamina has improved a lot. I think it is now sustained. I'm able to sustain my stamina right from the morning at 6 o'clock till the night at around 11:30, 12. I work almost non-stop. My weight loss was close to 2 kgs after I had just completed 3 weeks of Amida Yoga. And then for some time it did not decrease because I was unable to implement one type of fasting. Because I had that Delta variant of COVID, I had been advised not to fast. But even without fasting, now it has reduced almost close to 4 kilos. I'm able to breathe more deeply. I'm able to retain my breath for a longer time, but I know it can improve further. From before this workshop, I had been walking about 8 to 10 kilometers per day. But since I'm feeling lighter now, I'm able to walk at a faster pace. I had mentioned earlier that I had multiple fractures in my knees and feet, which made sitting down very painful. With both Ashtanga and Amida, I'm now able to sit down. It is slightly painful, but I'm able to sit for at least 5 to 10 minutes. During Diwali, just now, after the workshop, I fell down flat on my face and I sustained internal injuries. But luckily, I had no fracture. But despite these internal injuries, I think possibly because I was doing this yoga, I had become more flexible and I was walking almost immediately the next day. And now I'm almost recovered. I would credit this fast recovery to the yoga that I'm doing regularly, and my flexibility has also increased. There have also been some I would call them as cons. I feel that I have a lot of heat in my body, but now since it is winter, I'm not feeling the side effects too much. But Sheetal Pranayam is probably going to help me further. Slow release of breath, I'm able to do it better than what it was earlier, but I have to master it. I feel slightly constipated since I started the yoga. I take Hartiki once in a while, but I think I should take it continuously for some more time. And I have stopped taking cow's ghee. I should be taking that. The fog and confusion levels that I had post-COVID, they have reduced, but they are yet to be eliminated completely. Sugar levels are also slightly still disturbed, though I keep walking about 10 kilometers daily. But all in all, I think there has been a lot of improvement. I know I still have a long way to go, but with patience and determination, I know that this is a tool that is going to help me manage all my issues, if not eliminate it. Thank you very much for your patient listening. Thank you so much, Dr. Rohini, for the wonderful,
changes that you have met through Ashtanga and Ameda. So wish you all the best for your onward journey, and I think everything would be in place. So now I invite Vijay sir, who had just who had announced earlier also. So Vijay sir, you could talk about your journey of Ameda. I've put you on spotlight. Please, thank you so much, Vijay sir. Vijay ma'am, sorry. नमस्कार सभी को। Namaskar. मैं विजय बेंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी एज 69 है और मैंने अभी श्लेष्मा शुद्धि का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो इससे मेरा 3 किलो वेट कम हो गया और मैं लाइट फील कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं गंगा मैडम और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले भी मैंने 22 में बैक पेन के लिए भी थेरेपी की थी और उसके बाद पहले मैं चल फिर नहीं सकती थी। अभी मैं आधा घंटा इवनिंग और आधा घंटा मॉर्निंग में वॉक भी कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मैंने फिर डायबिटीज रिवर्सल कोर्स भी किया और मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी को कहती हूँ, किसी को भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो कुंभक करें। धन्यवाद। Thank you so much, Vijaya ma'am, for joining us tonight. And now I will be taking up the questions one by one. So let's see. And people who have their questions, please raise your hands. Saloni ma'am, I don't get home by 7, so I'll have to do full program via recording. Saloni ma'am, you can definitely do it via recording because it will be uploaded in our news NLR. And any queries you have that you can ask whenever you are available, so the mentors can answer your question. Yes, somebody has raised their hand. Let me just check. Sakshi Agarwal, ma'am, you can ask your question, please. I have unmuted you. Sakshi Agarwal, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Just wanted to ask, sir, that he said inhale and when you hold your breath, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वो चीज मिस हो गई। मतलब वो when he was trying to explain little bit of what is वो कुंभक। आपको बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे, जब आप इनहेल कर रहे हो उसको नीचे तक लेना है, इनर मसल्स तक। ठीक नहीं, है, उन्होंने कुछ कहा कि एनस तक डायरेक्ट करो, बट क्या मतलब वो चीज समझ नहीं थी, क्या बोल रहे थे वो। जो ब्रेथ आप ले रहे हो वो इनस तक डायरेक्ट करो। आप मतलब इंटरनली प्रेशर, फोकस आपका इंटरनल होना चाहिए। मैम जैसे ब्रेथ को मतलब प्रेशर देना है एनस की तरफ। हाँ, ब्रेथ को आपको प्रेशराइज करना है इनस की तरफ एंड ओके, डायरेक्ट करना है इनस की तरफ। प्रेशर मतलब आपको डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स द फ्लोर, टुवर्ड्स द इनस मसल्स। अच्छा, सो देन इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड ना। फिर मैंने रियलाइज किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एनस मसल्स। वो कभी कभी होता है डेफिनेटली जब आप इनहेल कर रहे हो, बट नॉट नेसेसरली। वो सब वो आपके आदत के ऊपर है। वंस यू गेट हैबिचुएटेड इट विल नॉट हैपन। दैट वाज अ स्मॉल एग्जांपल दैट ही वाज गिविंग कि कैसे आपको इंटरनली अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करना है और ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब इसमें क्या करना, मतलब दिस इज एम्प्टी स्टमक और दिस इज व्हाट इज दिस, आई मीन ये जो करना होता है। Ma'am, all the kriyas that we will be teaching you will mostly we would tell you to do it empty stomach. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको शाम को भी कर सकते हो ऑन अ लाइट स्टफ। एंड मैम दिस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम प्राणायाम, मतलब अनुलोम विलोम, मतलब वैसे वाला। Yes, it's different from pranayam. Here we are focusing on kumbhak and and therapeutically we are focusing, और इसमें प्राण शक्ति डायग्नोसिस होता है जिसमें आपका जो भी एक्स्ट्रा वेट है कुछ ना कुछ आपके बॉडी में रिस्क है, तो वो चीज स्वामी जी डिटेक्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, उस हिसाब से आपको कस्टमाइज कुंभक दिया जाता है।
तो वो कुंभक जब आप करते हो तो यू बाउंस बैक टू योर नेचुरल हेल्थ. ओके ओके ठीक है. Okay, somebody else has raised their hand. NG, I don't know, sir or madam. Yes, ma'am. NG, ma'am. Yes. I want to ask, this is only based on pranayam, this program? See, when we are talking of weight, then ये प्राणायाम नहीं है, ये कुंभक थोड़ा अलग है प्राणायाम से, जैसा कि मैंने अभी बताया. तो ये बेसिकली जब आप वेट के बारे में बात करते हो तो कुछ मूवमेंट्स भी डेफिनेटली होंगे, because without movements to reduce the weight, it is difficult. But we are going to redirect it towards the organ which is in malfunction or which is the reason or the trigger for your extra weight. तो ये प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इंटरनली आप स्ट्रेंथन कर रहे हो वो ऑर्गन जिसका फंक्शन बराबर नहीं हो रहा है और उसके लिए आपका एक्स्ट्रा वेट है. ओके. सो यही प्रोग्राम जो आप हमें कस्टमाइज करके देते हो, वही प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो आपका पहला जो आपका ट्रेनिंग होता है वो आप सीखते हो. जब आप सीख लेते हो तब स्वामी जी आपको कस्टमाइज देते हैं, रेशियो बताते हैं कि किस रेशियो में इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है. तो ये इस प्रोग्राम का यूनिकनेस है कि आपको कस्टमाइज कुंभक जो आपके लिए बना गया है, नॉट फॉर इंदिरा मैम और ज्योति मैम, क्योंकि उनका प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनका वेट का कारण कुछ अलग है आपके कारण से. Okay. And what about kriyas? Something is written about kriyas. So it's all yogic kriya? Again, as I said that these are all कुंभक related क्रियास. Okay. योगिक Okay. क्रियास थोड़ा अलग हो गया. Okay. Okay, Yes, thank Jyoti you. ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. Ma'am, you need to नमस्ते मैम. unmute yourself, please. नमस्ते मैम. नमस्ते, कौन बोल रहा है? प्लीज अपना नाम बताएं. मैं ज्योति बात कर रही हूँ पूना से. अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बोलिए. आपने जो सर ने जो कहा कि हम लोग अभी कुंभक का जो क्रिया करने वाले हैं, तो हम लोग बाकी के जो योगा है वो कर सकते हैं? हम लोग डेली जो डेफिनेटली योगा. कर सकते हैं. जो आपको नहीं ओके. करना है वो है कपालभाति. कपालभाति क्यों नहीं ओ. करना है? क्योंकि हम लोग जो सिखाते हैं उसमें एक्सलेशन बहुत धीरे करना है. आपका बॉडी डिजीज में क्यों है, प्रॉब्लम में क्यों है, रिस्क में क्यों है? क्योंकि आपका एक्सलेशन कंट्रोल में नहीं है. जब आप एक्सलेशन को कंट्रोल में करते हो, अपने नियंत्रण में करते हो, तो आपके बॉडी का रिस्क फैक्टर घटता है. तो आपको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है और कोई भी क्रिया जिसमें फास्ट एक्सलेशन है वो नहीं करना है. बाकी आप सब कर सकते हो. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. यस पूजा मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. पूजा शुक्ला मैम. Indira Chopra ma'am wants to ask from a long time. वो काफी देर से Okay. hand Yes, raise कर. Indira ma'am, you can ask. Then after Yeah. that, Pooja ma'am can ask. Okay. So my question is basically I do this Kapalbhati and Lom Vilom. So should I stop Okay. that completely? That's the first thing. Okay. Yeah. And second thing is I'm not very tech savvy. So I'll need someone to help me to make the payment and I can do Google Pay and all that. But I will need someone Okay. to tell me how to access. Okay. So to answer to your first question, as I just mentioned to the earlier participant, कपालभाति आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें फास्ट एक्सलेशन है. जो हम लोग सिखाते हैं उसमें बहुत स्लो एक्सलेशन करना होता है. नंबर 2, जो आप टेक savvy का बोल रहे हो, तो हमारे वहाँ जितने लोग ज्वाइन करते हैं सब बुजुर्ग लोग हैं और टेक savvy नहीं होते हैं उतने, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना. हमारा जो टेक्निकल बंदा है वो आपको जरूर हेल्प कर देगा. ठीक है. और एक और चीज, बिकॉज आई एम 70 years old, I cannot do too much physical exercise.
So these Okay. kriyas you are saying, does it involve heavy physical exercise also? No, it does not involve heavy physical exercise at all. It's mostly आपको बैठ के ही करना है, बट हाँ मूवमेंट्स तो हैं इसमें. तो आपको ज- कुंभक यानी कि ब्रेथ होल्ड के ऊपर ही ज्यादा फोकस है, बट जी मूवमेंट जरूर रहेगा इसमें. जी जमीन पे बैठना पड़ता है कि सोफे पे भी बैठ के कर सकते नहीं हैं? नहीं, आप आराम से चेयर पे बैठ के करो, क्योंकि आधे लोग बैठ नहीं पाते हैं ना जमीन पे ड्यू टू नी जी इश्यूज या दैट्स कुछ और प्रॉब्लम है. तो इसलिए राइट. आप चेयर पे बैठ के करो. हमारा मेन मोटिव है कि आप क्रिया करो, आप किधर भी बैठो, हमें प्रॉब्लम नहीं है. जी थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद थैंक यू. आपका. हाँ. थैंक यू. पूजा शुक्ला मैम, इफ यू वांट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ. Hello, I'm audible. यस यस डेफिनेटली. या I want to know that कि जैसे कि आप ये कुंभक कराएंगे, इसके साथ हम योगा भी कर सकते हैं. मैं रेगुलरली योगा करती हूँ, so I want to know मैम that. वही मैंने अभी मैम को बताया कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप करना. आर्ट ऑफ लिविंग है तो वो भी कर सकते हो, ईशा योग तो वो भी कर सकते हो, रामदेव बाबा का है तो वो भी कर सकते हो, बट आपको कपालभाति नहीं करना है. दैट्स दी ओनली थिंग. श्री श्री रविशंकर का है तो वो भी कर सकते हो. सो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट द कपालभाति, या कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें फास्ट एक्सलेशन है वो नहीं करना है, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हम जो कराते हैं. ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस सारी चीजें आप सॉल्व करोगे कि एट अ टाइम आप वन चीज सॉल्व करोगे? आई वांट टू नो दैट. मैम आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, इफ आई कुड नो. लाइक या वेट प्रॉब्लम है, फिर थोड़ा स्टेयर्स चढ़ते हैं तो क्योंकि 2 बार कोरोना हो चुका है तो हैवी ब्रीदिंग शुरू हो जाती है. कभी कभी रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है, लाइक दैट. हाँ, तो ये सब तो बहुत हैवी प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं. कुछ तो देखिए, आपका जो वेट इशू है उससे भी रिलेटेड होगा. जब हमारा वेट बॉडी में बढ़ता है तो ये जो हपानी है वो भी होता है, रात को नींद की इश्यूज है वो भी होता है. तो आप जैसे ही कुंभक करोगे ना, आप देखोगे कि आपके ये सब प्रॉब्लम तो इमीडिएटली सॉल्व होगा. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू सो Thank you. मच. Anybody else from the participants who would like to ask their question? Okay, Usha ma'am, you can ask your question. Usha ma'am. हेलो Yes, हेलो tell me ma'am. Yes. मैं ना अभी फिलहाल 15 दिन से मेरा डाइट प्लान भी चालू है और उसमें मेरा योगा सेशन भी है, तो अच्छा, वो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ इसके साथ? आपका योगा सेशन और डाइट प्लान है, आप कर हाँ सकते हो. जस्ट आप कपालभाति नहीं करना. हाँ वो है, और इसमें एक जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो फास्टिंग का कुछ बता रहे थे, तो इसमें फास्टिंग भी करना होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आप फास्टिंग करो. अभी आप कर पाते हो तो आप करो, और नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं. वो एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा. उसके साथ भी हम लोग ब्रीदिंग कराते हैं, जो ओके हम लोग लंगनम बोलते हैं. ओके ठीक है, थैंक यू मैम. यस, थैंक यू. एनीबडी एल्स? और कोई पार्टिसिपेंट है जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड? एनी साक्षी अग्रवाल मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. प्लीज Ma'am, अनम्यूट just योरसेल्फ. wanted, yes, ma'am, just wanted to know कि when you say fasting मतलब Yes. juice fasting, fruit fasting, what kind of fasting? मैम आप वो जब हम लोग फास्टिंग कराते, वी जस्ट टेल यू टू स्किप अ मील, और इफ यू कैन फास्ट द एंटायर डे, नथिंग लाइक इट. ये अपने ऊपर है. एनीथिंग एल्स मैम? नहीं मैम, आई गॉट दैट. स्किप अ मील मतलब जैसे डिनर स्किप कर दिया, पर ब्रेकफास्ट लंच जो भी ले, इसमें आप डाइट कुछ नहीं बताते कि डाइट में क्या चेंजेस करना है? हम लोग वी डोंट बिलीव इन डाइटिंग. मेरा पहला वेबिनार में इंट्रोडक्शन ही था. देयर इज नो क्रैश डाइटिंग दैट वी गिव यू. वी गिव यू फूड पर्सपेक्टिव्स.
हम आपको बताएंगे, चाहे आप नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, मिल्क पीते हो, मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ आपको बताएंगे फूड पर्सपेक्टिव्स, आप उसी खाने में कैसे चेंजेस करो। तो आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं होता है। जब आप डाइट करते हो तो डाइट से क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म तो सब लोग कर लेंगे एक्साइटमेंट में, लॉन्ग टर्म कभी कोई नहीं कर पाता है डाइट। और डाइट से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं होती ही है। और जो हम बताते हैं फूड पर्सपेक्टिव्स, तो उसमें आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होता है, अंदर की ताकत बढ़ती है और आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होता है। एनीथिंग हेलो एल्स, मैम। एनीबडी? हाँ हेलो मैम। हाँ, गीता सिन्हा मैम। हाँ मैडम, मेरा हेलो अभी मैम। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा अभी अष्टांग चिकित्सा चिकित्सा मैं ज्वाइन की थी, अभी खत्म ही हुआ है अच्छा 9 का कोर्स, और अभी हम लोग को कस्टमाइज मिला ही है, तो उसमें करीब 1.5 घंटा लग जाता है। तो फिर मैं इसको ज्वाइन करूँ मैम, तो अभी आपका आवाज ना बहुत धीरे आ रहा है, मुझे आवाज पूरा आ नहीं रहा है। आप थोड़ा साउंड का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना। हाँ, अब आ रहा है मैडम? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ। मैं अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन की हुई थी, और वो अभी अभी खत्म ही हुआ है। अभी कस्टमाइज हम लोग को मिला है, उसमें हम्म करीब 1.5 घंटे लग जाते हैं करने में। हम्म तो फिर मैडम हम्म इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो इसमें भी तो टाइम देना रहेगा ना, नहीं इसका तो बिल्कुल आप अलग। देखिए, स्वामी जी बोलते हैं जो भी आपने किया है उसको 6 महीने पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये ज्वाइन करिए। क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए आप सब ज्वाइन कर लो और कुछ भी ठीक से ना हो। जी, इसलिए मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसको फिर नहीं, ज्वाइन आप करना। ये 6 मंथ्स पूरा प्रैक्टिस करो, फिर आप ये ज्वाइन करो। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। और कोई? हेलो मैम, मैं सोनिया एनीबडी? जुनेजा। यस, हाँ हाँ बोलिए। जी। हाँ एक्चुअली में मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे तो वेट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है और थायराइड का भी इश्यू है मुझे। हाँ, तो वो इसी प्रोग्राम में ही सॉल्व होगा या अलग अलग से मुझे लेना पड़ेगा इसके लिए? देखिए हम लोग प्राइमरी फोकस तो करते हैं वेट पे, राइट? तो जी। द थिंग इज कि अब आपका वेट जैसे जैसे कम होता है, थायराइड इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वेट इज देयर, ठीक है? तो आप थायराइड का प्रोग्राम जो हमारे सिस्टर कंसर्न रन करते हैं, तो वो आप ज्वाइन करते हो तो आपका वेट इशू विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, मेन अगर थायराइड ज्वाइन करते हो तो। अच्छा, तो थायराइड तो अभी जैसे मैं टैबलेट ले रही हूँ तो थायराइड तो मेरा नॉर्मल है जैसे अभी उसके उस पे। तो मुझे आप हाँ, बताइए तो मुझे वो आप कौन। टैबलेट ले रहे हो इसलिए नॉर्मल है ना। हाँ जी। हाँ, तो तो मुझे अभी इसलिए मतलब ये। मेटाबॉलिक फंक्शन उतना तेज नहीं होता है ना जिनको थायराइड होती है। एक मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो। यस मैम। नहीं हम्म। तो मुझे ये वाला वेट वाला अगर मैं करती हूँ तो ये सुटेबल रहेगा ना मेरे लिए, वेट हाँ, वाला ही। तब आप वेट वाला कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम। तो अभी वेट वाला ज्वाइन नहीं करूँ मैं पहले? नहीं नहीं, आपको अगर लग रहा है आपका थायराइड इन कंट्रोल है तो फिर आप वेट वाला ज्वाइन कर लो। वो आपको हम्म। थायराइड में हेल्प भी करेगा, वो तो गोज ओके। विदाउट सेइंग। तो आप ओके। ज्वाइन कर सकते ओके मैम। हो। यस। एनीबडी एल्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मेरे हस्बैंड को शुगर है और ओबेसिटी है, तो लेकिन उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है सुबह से शाम तक, तो लाइव क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पाते, तो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और कभी उनको कोई क्वेरी हो, जब उनको टाइम हो, तो वो हमारे मेंटर्स के क्लास अटेंड करके मेंटर से पूछ सकते हैं। वो सपोर्ट हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। Anybody else from the participants who would like to ask their question, you're most welcome to do so before we close the session. Ma'am, you said about thyroid, तो कोई sister concern, तो who's the sister concern and what are the details thyroid के लिए? You can write your name and number and in the webinar group and we'll let you.
So we'll close the session here as I think we've answered all the questions. अगर फिर भी आपका कोई questions आप भूल गए या नहीं पूछा है, please put it in the webinar group and we will answer shortly. Thank you so much to all the participants for staying in the webinar, and we have been able to answer all your questions, I feel. So thank you so much once again and good night. Stay well and stay healthy. Signing off, Rachna. Namaskar.